arriving in the hall. Kindly be seated. Once again, a warm welcome to all on a cold, sunny morning. As we all know, yoga is the journey of discovering the self. To fulfill this aim, we selected the theme and the speakers of the ongoing workshop on yoga, a scientific way of living, with the intention to bring you the most powerful transformation in your daily life. There have been series of sessions and lectures by experts in the field delivering a fusion of ancient wisdom and modern science in telling us ways how yoga can make a direct positive impact on us. On the penultimate day of the 5-day workshop, we will be enlightened about yoga as a therapy. So, today we have the rapture of having on our campus an eminent personality in the field of yoga education, Dr. Rakesh Giri. I extend a genial reception to him on behalf of the principal, faculty, and students of Government College of Yoga Education and Health. Dr. Giri has a long association with our college and has immense contributions in laying the foundation of our college. A very hearty welcome to you, sir. May I now request our Revered Principal, Dr. Sapna Nanda, to welcome our worthy chief guest by presenting a plant pot. Thank you, sir. Once again, a very warm welcome to you. Now, let us commence today's day with the blessings of the Almighty. I request our worthy chief guest to grace the lamp lighting ceremony. Respected principal ma'am and faculty members to accompany him. For let this be a light of positivity, hope, love, prosperity, and may we all pray that we transcend on the path of universal unity and peace.
सोई देवे। हर जन राखे गुरु गोविंद, राखे गुरु गोविंद। हर जन राखे गुरु गोविंद, राखे गुरु गोविंद। कंठ लाए अवगुण सब मेरे, दयालु रख बख्शिंद। कंठ लाए अवगुण सब मेरे, दयालु रख बख्शिंद। जो मांगे ठाकुर अपने दे, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने दे, सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले, इहा उहा सच होवे। नानक दास मुख ते जो बोले, इहा उहा सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने दे, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने दे, सोई सोई देवे। Thank you, dear students and Dr. Gunanidhi Sharma, for the auspicious beginning of the day. May I now invite our Reverend Principal, Dr. Sapnananda, to formally welcome our worthy chief guest. Thank you, dear Sergey. Our very honorable speaker for today, Dr. Rakesh Giri, my very dear students and faculty of this institution, a very blessed morning to you all. It's matter of great pride for me to extend a very warm welcome to Dr. Rakesh Giri sir, Head of the Department of Yogic Sciences, Gurukul Kangdi Vishwavidyalaya, Haridwar, on the occasion of 4th day of ongoing workshop on yoga, a scientific way of living. It's indeed my proud privilege to share some of his accomplishments and achievements of our worthy chief guest, Dr. Rakesh Giri. Dr. Rakesh Giri, after completing his schooling from Patiala, he did his BSc Medical from Punjab University and thereafter joined Punjabi University and completed MSc in Chemistry from Punjabi University. In the year 1986, Dr. Rakesh Giri did his PhD in Yoga and Biochemistry from Punjab University. At the inception, when our college used to be an yoga organization by the name of Government Yoga Health Organization, Dr. Giri served here as yoga therapist from year 1977 to 1982 and thereafter took over the charge of state yoga organizer in August 1982, which he retained till April 2003. Soon thereafter, he joined Department of Yogic Sciences, Gurukul Kangdi University, Haridwar, as assistant professor, and in the year 2015, Dr. Giri became associate professor, and since 2017, he is head of the department there. Sir has a teaching experience of more than 25 years to his credit. Dr. Giri has presented research papers in around 42 international and national conferences, seminars and workshops, and he has published 5 books. Dr. Giri has organized and executed various yoga training and yoga therapy camps and has given coaching to yoga teams at national level. Sir is a member of National Association of Psychological Sciences, Chandigarh.
Indian Science Congress Association Haridwar chapter, Yoga and Psychotherapy Association of India, Sagar in Madhya Pradesh, and many other councils and associations, to name a few. Among many national and international awards conferred upon Dr. Giri to his career, the most prominent ones are being awarded to him at Vienna in 2002, Tehran in 2004, Italy in 2011, and Slovenia in 2015. So I can go on and on in sharing his achievements and accomplishments, and the list is endless. Dr. Giri is well regarded for his diligence and academic approach, and his contributions in the field of yoga education is immense. We consider ourselves blessed and honored, and he is amongst us, to have him amongst us to share his wisdom with all of us. Here some of our faculty members must be students of Dr. Giri, though I have not been a student of Dr. Giri, but I have learnt a lot about him, about his knowledge, his wisdom about yoga. So we are blessed to have him with us today morning to share his experiences, lifelong experience. He's soon going to retire in, I think, May this year. So he has vast experience in the field of yoga, and we are blessed to have him with us today. We welcome you, sir. Thank you for being with us. Thank you, ma'am, for sharing with us the achievements and accomplishments of our esteemed speaker today, Dr. Giri. May I now request Dr. Giri to please come and share his wisdom with us. Good morning, all of you. Respected Madam, respected all the teachers of this institute, and dear students, newly entrants of the B.Ed Yoga course, and the other university students. ये मेरा सौभाग्य है कि मैडम ने मुझे यहाँ आपके साथ अपने विचार प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मैं अपने विचार आपके सामने प्रकट कर सकूं। जो आपका थीम है, योगा ए साइंटिफिक वे ऑफ लिविंग, उस थीम को ध्यान में रख कर के जो बातें आपको योग के बारे में साइंटिफिक एस्पेक्ट से आप जो आपके जानकार नहीं है, उस संबंध में मैं चर्चा करूंगा। जो टॉपिक है उसके चारों तरफ ही मैं अपने विचार प्रकट करने की कोशिश करूंगा। ये इस वर्कशॉप का चौथा दिन है। मेरे से पहले भी दिनों में आपने योग के बारे में कुछ ABCD टाइप कुछ जानकारी प्राप्त की होगी। थोड़ी सी भूमिका बनाते हुए मैं अपने जो साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हैं उन पर आने की कोशिश करूंगा। देखिए, आप योग के क्षेत्र में आए हैं तो योग का अर्थ भी आपको पता लग गया होगा। योग युज धातु से बना है और विभिन्न कारकों में इसका युज धातु का प्रयोग होकर के इसका विभिन्न अर्थ भी निकलते हैं। अगर हम युज धातु को उद्देश्यार्थ
इसका अर्थ लें युज समाधौ के तौर पर, तो आम भाषा में कह दे समाधि की जगह हम कहें आत्मा परमात्मा का मिलन योग है, परमात्मा से मिलने का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को भी योग के नाम से जाना जाता है। परम जो अवस्था है एकाग्रता की, समाधि, उसको भी योग कहते हैं। उसकी प्राप्त उस अवस्था का नाम भी योग है, और जिन साधनों की सहायता से उस अवस्था को प्राप्त किया जाता है उन साधनों को भी हम योग के नाम से जानते हैं। जैसे अगर आप भक्ति के साथ उस चीज को, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो भक्ति योग, ज्ञान के आधार पर प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्ञान योग, मंत्र के आधार पर करना चाहते हैं तो मंत्र योग। तो जितने भी साधन हैं योग के, उनको भी योग के नाम से जाना जाता है। उस परम अवस्था का भी नाम योग है। और जिस स्थान पर अधिकरण कारक में अगर इसका प्रयोग हो तो जिस स्थान पर इस चीज को प्राप्त किया जाता है चित्त के अंतर्गत, तो उस स्थान का भी नाम योग है। तो योग के विभिन्न अर्थ हैं, और जिस योग की चर्चा हम यहाँ करेंगे और जो योग आमतौर पर सिखाया जाता है, हम कुछ पोस्चरल एक्सरसाइज करते हैं जिनको आसन कहते हैं, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं उनको प्राणायाम कहते हैं, कुछ मेडिटेशन की एक्सरसाइज हैं, कुछ मुद्राएं हैं। उस शाखा का नाम, योग की शाखा का नाम हठ योग है। अगर हम महर्षि पातंजलि की दृष्टि से देखें तो अष्टांग योग के तौर पर योग साधना पद्धति है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। वो भी एक साधन मार्ग है परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने का। तो योग वशिष्ठ के अनुसार जो योग की डेफिनेशन दी गई है वो जीवात्मा और परमात्मा की समता अवस्था को योग कहते हैं। अब मिलन की अवस्था तो ऐसी तो नहीं है कि हम एक दूसरे से जैसे मिलते हैं मित्र के तौर पर, मैं आपसे मिल रहा हूं या आप अपने दोस्त से मिल रहे हैं, तो ऐसी बात की साइंस में, भाव में तो आत्मा परमात्मा का मिलन योग की बात नहीं है। अपने जीवात्मा को योग साधनाओं की सहायता से शरीर के जितने भी जीवात्मा के विकार हैं, ईर्षा, द्वेष, राग, लोभ, मोह, इन सभी विकारों से को दूर करके जब आपकी जीवात्मा की अवस्था परम पिता परमेश्वर जैसी अवस्था जैसे एक जैसी हो जाती है, समता अवस्था को प्राप्त हो जाता है, उस समता अवस्था का नाम भी योग है। तो योग के विभिन्न अर्थ हैं, लेकिन अलग अलग भाव में योग शब्द इस्तेमाल होता है। अब इसी का बिगड़ा हुआ रूप है पंजाबी में जुगाड़। जुगाड़ हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं साधन के लिए कि इस काम ਨੂੰ ਕਰਨ वास्ते की जुगाड़ अपनाएगा। तो जुगाड़ योग का ही बिगड़ा हुआ रूप है। योग साधन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है शब्द। तो हम यहाँ पर हठ योग की चर्चा करेंगे, और हठ योग से अलावा भी एक दूसरी नई ब्रांच है योग की जो कम जानी जाती है, उसका नाम है स्वर योग। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन स्वर योग की भी दे देता हूं। स्वर किसे कहते हैं? योग में जो आपके श्वास का आवागमन से
आपकी सांस आ रही है और जा रही है, उसकी वजह से जो माइक्रो साउंड वाइब्रेशन क्रिएट होती है, श्वास के आवागमन से जो माइक्रो साउंड प्रोड्यूस होती है, ध्वनि प्रकंपन होता है, उसको हम स्वर कहते हैं। योग भाषा में, स्वर योग साधना में हम स्वर के नाम से जानते हैं। जो दाईं नासिका से श्वास बहता है, मनुष्य की एक प्रकृति है कि कभी भी बहुत कम चांसेस होते हैं, सिचुएशंस होती हैं जब हम दोनों नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं, हम अल्टरनेटली ब्रीथ कर रहे होते हैं, कभी राइट नॉस्ट्रल ज्यादा चल रही होती है, कभी लेफ्ट चल रही होती है। ये प्रैक्टिकली आप देखेंगे, ऑब्जर्व करके ध्यान से देखेंगे, एक ही नॉस्ट्रल ज्यादा वर्क करती है एट ए टाइम, और ये बदलती रहती है 2-3 घंटे में, दूसरी नॉस्ट्रल ये बदल बदल के काम करती हैं। जैसी शरीर की अंदर की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से नॉस्ट्रल ब्रीदिंग बदल जाती है। तो स्वर 3 होते हैं। एक सूर्य स्वर है, दाईं नासिका से श्वास के आवागमन से ध्वनि प्रकंपन को हम सूर्य स्वर कहते हैं, और बाईं जो नासा छिद्र है, नासिका नॉस्ट्रिल है, उससे जो श्वास का आवागमन होता है उसको हम चंद्र स्वर कहते हैं। और जब दोनों नॉस्ट्रिल से इक्वली सांस बहता है तब हम उसको सुषुम्ना स्वर कहते हैं। अब इनका रिलेशनशिप हमारी बॉडी में एनर्जी चैनल से है। हमारे शरीर में इलेक्ट्रिकल वायर की तरह एनर्जी के चैनल्स हैं। रीढ़ की हड्डी के दाईं तरफ सूर्य नाड़ी बहती है, रीढ़ की हड्डी के बाईं तरफ चंद्र नाड़ी बहती है, और बीच में सुषुम्ना नाड़ी बहती है। इनकी फंक्शनिंग स्टेट को हम पहचान सकते हैं। जब राइट नॉस्ट्रिल चलती है तो हमारी पिंगला नाड़ी सूर्य स्वर चल रहा होता है, उसमें एनर्जी का प्रभाव, प्राणिक जो शक्ति है हमारी बॉडी की, उसमें वर्क कर रही होती है। और जब आपकी बाईं नॉस्ट्रिल से सांस चलता है तो ईड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी अपना कार्य कर रही होती है। सुषुम्ना नाड़ी, जब दोनों इक्वली चलते हैं तो उसको हम सुषुम्ना नाड़ी के नाम से जानते हैं। सूर्य नाड़ी गर्म है, जैसा कि नाम से विदित है। सूर्य नाड़ी चलते हुए हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन का कार्य होता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा होता है, पल्स रेट इंक्रीज हो रहा होता है। तो ये टेंडेंसी एक ग्राफ की तरह बढ़ रही होती है। और उसके उलट जब चंद्र नाड़ी चलती है तो शरीर में एनर्जी कंजर्व हो रही होती है, टेम्परेचर डाउन जा रहा होता है, पल्स स्लो डाउन हो रही होती है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा होता है। तो ये इसकी प्रकृति है। चंद्र नाड़ी ठंडी होती है, सूर्य नाड़ी गर्म होती है। और बैलेंसिंग के तौर पर करने के लिए हठ योग की जो ब्रांच है और ठे, ईड़ा और है और ठे, हठ का मतलब कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। वो साधना जिसमें है और ठे, ईड़ा, पिंगला नाड़ी को मुख्य आधार मान करके हम प्राण को उससे हटा करके सुषुम्ना में डालने की, मध्य नाड़ी में डाल करके साधना करना चाहते हैं, तो ऐसी योग की ब्रांच को हठ योग कहते हैं। हठ योग का मतलब, हठ का मतलब जबरदस्ती नहीं होता। यहाँ है और ठे दो नाड़ियां हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो साधना की जाती है, हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मुद्राएं करते हैं, तो विभिन्न साधन की सहायता से, षटकर्म की सहायता से हम ईड़ा पिंगला नाड़ियों को शुद्ध करते हैं, जिससे कि प्राण का प्रवाह जो है ईड़ा पिंगला से हट करके सुषुम्ना में चलना शुरू हो जाए। अब सुषुम्ना जो स्वर है वो भी तीन तरह का होता है। एक तो होता है संधिकालीन सुषुम्ना स्वर, जब बाईं नासिका से दाईं नासिका चलनी होती है तो थोड़ी थोड़ी लेफ्ट भी चल रही होती है, थोड़ी थोड़ी राइट भी चल रही होती है, या राइट से लेफ्ट की तरफ सांस शिफ्ट होना हो तब दोनों नॉस्ट्रिल थोड़ी देर के लिए चलती हैं। उस स्थिति को हम संधिकालीन सुषुम्ना स्वर बोलते हैं। इसी प्रकार सुषुम्ना स्वर एक सांसारिक सुषुम्ना स्वर भी होता है।
सांसारिक सुषुम्ना स्वर का मतलब ये है कि जब हम कोई बहुत ज्यादा गुस्सा, क्रोध आ रहा हो या भय का वातावरण हो या फिर हम कोई कुकृत्य, बहुत ज्यादा गंदा काम, मर्डर जैसा कोई कार्य या डकैती जैसा कोई कार्य करने जा रहे हों, तो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां कार्यरत, अलर्ट हो जाती हैं, प्राण शक्ति का प्रभाव पूरा हो जाता है और दोनों नॉस्ट्रिल उस वक्त फुल्ली चलायमान हो जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में दोनों नॉस्ट्रिल की जो सांस के बहने की प्रक्रिया है उसको हम सांसारिक सुषुम्ना स्वर कहते हैं। एक है आध्यात्मिक सुषुम्ना स्वर, जब हम विभिन्न आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध इत्यादि की सहायता से अपने शरीर का शुद्धिकरण करते हैं, षटकर्म की सहायता से ग्रॉस इम्प्योरिटीज को दूर करते हैं, आसन की सहायता से पोस्चरल रिफ्लेक्सेस को ठीक करते हैं, हम प्राणायाम की सहायता से मिन्यूट लेवल की नाड़ियां जो अशुद्धियां हैं उनको दूर करते हैं, तो उनकी सहायता से हमारे शरीर की अशुद्धियां दूर होकर के प्राण जो है ईड़ा पिंगला से हटा करके बैलेंसिंग रूप में सुषुम्ना से चलना शुरू हो जाता है। तो उसको हम आध्यात्मिक आधारित आध्यात्मिक साधना के तौर पर प्राप्त हुआ सुषुम्ना स्वर के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिक मैंने आपको स्वरों की जानकारी दी है। स्वरों की जानकारी के बाद अब मेरी जो मुख्य बातें हैं कि स्वरों के आधार पर आपको कुछ साइंटिफिक वे ऑफ लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ करेंगे। देखिए, एक बात तो मैं जो कहने आया था वो योगा थेरेपी से भी रिलेटेड था। देखिए, स्वास्थ्य किसे कहते हैं? हम योग में और आयुर्वेद में समग्र स्वास्थ्य की बात करते हैं, होलिस्टिक हेल्थ की चर्चा होती है। अब आप होलिस्टिक हेल्थ के तौर पर डेफिनेशन जो लेंगे, सुश्रुत महर्षि सुश्रुत जी के अनुसार जो दी हुई है, सम दोष है, सम धातु, समाग्निश्च मलाक्रिय, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मने स्वस्थिति अभिधीयते, कि हमारे शरीर में विभिन्न जो अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं, हमारे 3 दोष हैं, शारीरिक दोष, वात पित्त कफ, शारीरिक दोष, सम दोष है, सम धातु, 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि इत्यादि, 13 अग्नियां हैं शरीर में। एक जिससे खाना पचता है उसको जठराग्नि कहते हैं। उसके बाद धातुओं के लिए 7 धातु अग्नि है। पहले खाए पिए भी वो रस बनता है, रसाग्नि के ऊपर रसाग्नि एक्ट करके रक्त बनाती है, रक्त अग्नि जो है मांस बनाती है। तो विभिन्न धातुओं को परिणित करने के लिए जो अग्नि इस्तेमाल होती है, एंजाइम्स, हार्मोन इस्तेमाल होते हैं, उनका नाम अग्नियां हैं। तो 13 अग्नियां हैं हमारे शरीर में, 5 महाभूत अग्नियां हैं। हमारे 5 शरीर 5 महाभूत से बना हुआ है, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि। तो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन में जो अग्नियां इस्तेमाल होती हैं बॉडी में, उनको भी अग्नियां कहते हैं। 5 पंच महाभूत अग्नियां हैं, 7 धातु अग्नियां हैं, जठराग्नि है, 13 अग्नियां। और मल उत्पादन और निष्कासन की क्रिया, मेटाबॉलिज्म में हमारे शरीर में विभिन्न अशुद्धियां प्राप्त होती हैं, तो मल उत्पादन की और निष्कासन की क्रिया भी सुचारू रूप से चलती रहे। तो सुश्रुत जी ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति के शरीर में दोष सम अवस्था में हो, धातु सम अवस्था में हो, अग्नियां अपनी अपनी जगह रह करके कार्य करती हों और मल उत्पादन और निष्कासन की क्रिया भी ठीक तरह से होती रहे, और साथ में प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन है, आत्मा हमारी जीवात्मा जो है इंद्रियों सहित मन से प्रसन्नचित हो, तो ऐसी
शरीर की स्थिति को हम स्वास्थ्य कहते हैं। स्वय का अर्थ है सभी अवयव अपनी प्राकृतिक अवस्था में स्थित होकर के अपना अपना कार्य सुचारू रूप से मिलजुल करके करें, उससे जो हमें जो प्राप्ति होती है मन आत्मा इंद्रिय लेवल पर सुख की, उसको हम स्वास्थ्य कहते हैं। तो ये हमारे समग्र स्वास्थ्य की परिभाषा है, जिसमें हम स्पिरिचुअल लेवल भी आ जाता है, वर्ड आत्मा भी आया है, मन भी आया है, इंद्रियां भी आई हैं और फिजिकल लेवल पर दोष धातु अग्नि भी आई हैं। तो इसमें सारे एलिमेंट्स अपने आप में समाहित हैं। इसको हम समग्र स्वास्थ्य की परिभाषा बोलते हैं। इसी तरह से उसके उलट व्याधि है, जब शरीर के इस विभिन्न जो ये अवयव हैं, वी जमा आधि, वी नेगेटिव सेंस में यूज होता है, आधि का मतलब इंटेग्रेटेड स्टेट, स्टेट ऑफ डिसइंटेग्रेशन जो है व्याधि कहलाता है। शरीर की वो स्थिति जिसमें दोष धातु अग्नियां अपनी अपनी जगह रह करके अपना अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं करते और मन उत्पादन निष्कासन क्रिया भी बाधित होती है। हमारी मन आत्मा इंद्रियां भी प्रसन्नता को प्राप्त नहीं होती, फलस्वरूप दुख को प्राप्त होती हैं। हौज पौज की जब स्टडी स्थिति पैदा हो जाती है, उसी का नाम व्याधि है। तो इस और जो भी उपाय हम संसाधन इस्तेमाल करते हैं, जिसकी सहायता से रोगी शरीर को हम स्वस्थ शरीर में परिणित करने में सक्षम होते हैं, किसी भी चीज की सहायता से, उसका नाम चिकित्सा है। चिकित्सा किसे कहते हैं? जिसकी सहायता से हम स्वस्थता को प्राप्त करते हैं। व्याधिग्रस्त शरीर से स्वस्थता की स्थिति को प्राप्त होते हैं, उसी का नाम चिकित्सा है। तो योगिक चिकित्सा क्या है कि योग के संसाधनों की सहायता से, आसन की सहायता से, यम नियम की सहायता से, षट कर्मों की सहायता से, प्राणायाम की सहायता से, विभिन्न जो संसाधन हैं उनकी सहायता से जो हम स्वस्थ शरीर को बनाए रखने में या प्राप्त करने में हम अपने एफर्ट्स लगाते हैं, उसी का नाम योगिक चिकित्सा है। तो इसके कुछ योग चिकित्सा के कुछ सिद्धांत हैं। आप अभी कोर्स आपका स्टार्ट हुआ है, तो योग चिकित्सा के सिद्धांत भी आप पढ़ेंगे। मैं तो यहाँ थोड़ा सा एलिमेंट्री नॉलेज आपको देकर के जो प्रमुख बातें हैं जो कहना चाहता हूँ, उनको मैं आपसे बात करूंगा। चिकित्सा के संदर्भ में ही बात करूंगा मैं। देखिए, योग चिकित्सा के 5 सिद्धांत हैं। 4 तो डॉक्टर स्वामी कुवलानंद जी के द्वारा लोनावाला का इंस्टीट्यूट जो है, वहां से स्वामी कुवलानंद जी ने 4 सिद्धांतों की चर्चा की है। 5वां सिद्धांत आजकल की स्थिति को ध्यान में रख करके मैंने थोड़ा सा स्थापित किया है। पहला सिद्धांत है, हमारी ठीक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास हेतु यम नियम का पालन होता है। कुछ सोशल एथिकल वैल्यूज हैं, पर्सनल एथिकल वैल्यूज हैं, अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनका पालन करना, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन सब का पालन करना। मकसद ये रहता है कि जो हमारी साइकोसोमैटिक डिजीज है, मनोकायिक व्याधियां हैं, मनोरोग हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए ये आवश्यक है कि हम अपने सकारात्मक जो एटीट्यूड है उसको डेवलप करें, विकसित करें। नेगेटिव जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ग्रीडीनेस, मोह वश हम कई गलत काम करते हैं। ईर्षा, द्वेष, परोपकार, चिकित्सा, ये विभिन्न प्रकार के जो नेगेटिव इमोशंस हैं, भय है, उद्विग्नता है, एक्साइटमेंट है, इन सब को कंट्रोल करने के लिए किसी हद तक हमें यम नियम का पालन, सोशल और पर्सनल एथिकल वैल्यूज को पालन करना होता है। नहीं तो ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी काबू नहीं आ सकती,
गैस्ट्रिक एसिडिटी कंट्रोल नहीं हो सकती। अगर आप एक्साइटमेंट और एंजाइटी के साथ खाना खाएंगे तो आपकी इंडाइजेशन की क्रिया उपलब्धि होगी। तो विभिन्न रोगों को काबू करने के लिए पहले सिद्धांत तौर पर है कि अपने जो एटीट्यूड है उसको ठीक करने के लिए, सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए यम नियम का पालन हो। दूसरा लेवल पर सिद्धांत आ जाता है कि शरीर में जो ग्रॉस इम्प्योरिटीज हैं उनको अगर हैं तो उनका षटकर्मों का जो 6 हमारी क्रियाएं हैं शुद्धिकरण की, उनका प्रयोग करके ग्रॉस इम्प्योरिटीज को शरीर से दूर किया जाए। नहीं तो आसन प्राणायाम से आपको ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा शरीर को शुद्ध करने के लिए, प्रभावित करने के लिए। इसी के साथ थर्ड जो सिद्धांत है कि विभिन्न जो हमारे न्यूरोमस्कुलो ग्लैंडुलर सिस्टम है, आपका तंत्रिका तंत्रीय, मांसपेशीय और अंतःस्रावी ग्रंथीय प्रणाली जो है, जो वीक हो जाती है डिजीज की अवस्था में, उसको सुदृढ़ करने के लिए आसन प्राणायाम मुद्रा बंद की सहायता से उसको सक्रियता प्रदान करना, एक्टिव करना, प्राणिक एनर्जी को उधर भेज करके विभिन्न व्याधिग्रस्त शरीर को अंगों की तरफ भेज करके उसको सुदृढ़ करना, ये तीसरा सिद्धांत रहता है। चौथा हमारा हर कोई थेरेपी में पथ्य अपथ्य आधारित आहार की चर्चा करता है कि ये आहार खाएं। होम्योपैथी में भी जाएंगे, डॉक्टर कहता है ये चीज़ नहीं खानी। ब्लड प्रेशर के मरीज को कहा जाता है नमक नहीं ज़्यादा खाना। डायबिटीज़ को कहा जाता है ज़्यादा मीठा नहीं खाना। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी डिजीज जो चिकित्सा होती है उसमें हम डाइटरी प्रिंसिपल जरूर लेते हैं, पथ्य अपथ्य आधारित आहारीय निर्देशों का पालन करना भी जरूरी है चौथे सिद्धांत पर। और आहार ग्रहण करने की जो नियमावली है, आहार को कैसे लें, उसका भी पालन करना बहुत जरूरी होता है। पांचवा सिद्धांत आ जाता है कारणीय तत्व आधारित जो हमारी आचरण है उसको सुधारना। कारणीय तत्व के तौर पर समझाने की बात यह है कि अगर आप डिम रोशनी में पढ़ेंगे तो आई साइट वीक होगी, तो आपको ठीक ठीक रोशनी में पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप लॉन्ग टर्म ड्राइविंग करते हो, 8-8 घंटे की ट्रक ड्राइविंग, या आप बस ड्राइविंग करते हो या कार ड्राइविंग करते हो, तो उसकी वजह से कंधे थक जाते हैं, सर्वाइकल की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आपको लगातार 3-4 घंटे से ज़्यादा ड्राइविंग करने की आदत छोड़नी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है अगर आप पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहने के कारण आपको रेस्पिरेटरी ट्रबल हो रही है तो आपको पोल्यूटेड एनवायरनमेंट से थोड़ा सा बचाव करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है जिन कारणों की वजह से कोई बीमारी पैदा होती है उसको सुधारने के लिए अगर कोई आचरण में तब्दीली लानी है, विकृत जीवन शैली को सेट राइट करना है, जैसे कि लेट नाइट डिनर करने की वजह से आपको इंडाइजेशन होता है, मंदाग्नि होती है, गैस्ट्रिक एसिडिटी होती है, तो वो आपको आदत छोड़नी पड़ेगी। जल्दबाजी में भोजन करते हो तो अपनी आदत को सुधारना पड़ेगा। तो कारणीय तत्व आधारित जो आचरण नियमावली है उसका भी पालन करना जरूरी है। तो ये कुछ 5 सिद्धांत थे। अब मैं कुछ इम्पॉर्टेंट डे टू डे लाइफ की जो इंस्टांस की वजह से जो मुख्य बातें हैं उनकी चर्चा करूंगा। अभी मैंने आपको थोड़ा सा स्वर योग के बारे में जानकारी दी थी, तो स्वर योग के कुछ पॉइंट्स के पॉइंट से पहली बात तो ये, हमारे स्वर योग में कुछ नियम लिखे हुए हैं कि कुछ काम हमें दैनिक दिनचर्या में सूर्य नाड़ी चलते हुए करने चाहिए, कुछ चंद्र नाड़ी चलते हुए करने चाहिए। लेकिन आप कहोगे कि ये तो दकियानुसी बात होगी कि हम पर्टिकुलर नॉस्ट्रल के मुताबिक अपने कार्य करेंगे तो उसमें एफिशिएंसी आती है। अगर दकियानुसी के पॉइंट से इसको एक्सप्लेनेशन किया जाए कि साइंटिफिक क्या एस्पेक्ट है
जिसके आधार पर कह रहे हैं कि हमें स्वरों के अनुसार अपनी दिनचर्या को अपनाना चाहिए, उसका मैं साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने की बात करता हूं। देखिए, हमारे शरीर में प्राणिक एनर्जी होती है और जन्मजात तौर पर हमें माँ बाप से मिली होती है। उस प्राणिक शक्ति के आधार पर ही हम कहते हैं कि मनुष्य या प्राणी अपना जीवन यापन करता है। उस प्राणिक शक्ति के दो रूप हैं, एक गत्यात्मक ऊर्जा है, एक मनस शक्ति है। जब आपकी प्राणिक शक्ति का प्रभाव चैनल सूर्य स्वर में होता है तो हम उसको कहते हैं कि शरीर में प्राणिक एनर्जी का फ्लो गत्यात्मक ऊर्जा के रूप में आपके शरीर में अवेलेबल है। और जब यही प्राण शक्ति जो है आपके लेफ्ट चंद्र नाड़ी में बह रही होती है तो ये मनस शक्ति के रूप में अवेलेबल होती है। देखिए, इसकी एनालॉजी मैं आपको देता हूं, जैसे कि बिजली का करंट है। अगर बिजली का करंट इस पक्खे में आ जाए तो पक्खा चलना शुरू हो जाता है। यही बिजली का करंट मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब ये ट्यूब लाइट में चला जाता है तो इसको लाइट एनर्जी में कन्वर्शन हो जाती है इलेक्ट्रिक करंट ही। लेकिन लाइट एनर्जी से हम मैकेनिकल एनर्जी का काम नहीं ले सकते, और मैकेनिकल एनर्जी का पक्खे की जो एनर्जी है इलेक्ट्रिक करंट के रूप में, उससे लाइट एनर्जी का काम नहीं ले सकते। ऐसे ही हमारे शरीर में प्राण जो शक्ति है उसके दो स्वरूप हैं, गत्यात्मक ऊर्जा और मनस शक्ति। जिस प्रकार एक एनर्जी दूसरे मैकेनिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी का काम नहीं लिया जा सकता, लाइट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी का काम नहीं लिया जा सकता, उसी प्रकार हमारे शरीर में जो दो ऊर्जाएं हैं, दो स्वरूप हैं, प्राणिक ऊर्जा के दो स्वरूप हैं। सूर्य स्वर चलते हुए हमारे शरीर में गत्यात्मक ऊर्जा है। तो गत्यात्मक ऊर्जा से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं, आपको दौड़ लगानी है, किसी के साथ लड़ाई करनी है, स्टर्नुअस टास्क है, भारी भरकम कोई काम करने हैं जिसमें एनर्जी की जरूरत है, फिजिकल एनर्जी की जरूरत है, ये सारे कार्य सूर्य नाड़ी चलते हुए करेंगे तो आपको इजी महसूस होगी, एफिशिएंसी महसूस होगी। एक खिलाड़ी अगर दौड़ लगाता है सूर्य नाड़ी चलते हुए तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी। अगर वही काम चंद्र नाड़ी चलते हुए करेगा तो उसकी एफिशिएंसी कम आएगी। तो अब इसी प्रकार खाने के बारे में कहा गया है कि सूर्य नाड़ी चलते हुए अपना भोजन कीजिए तो आपका खाना पचेगा। अगर चंद्र नाड़ी चलते हुए आप भोजन कर भी लेते हो, भोजन का टाइम है, तो भी अगर आप बाईं करवट लेट जाएंगे, अगर आप बाईं करवट लेटे तो सूर्य नाड़ी चलती है, राइट नॉस्ट्रिल वर्क करती है। आप ये प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। दाईं करवट लेटोगे रात को तो लेफ्ट आपकी चलेगी। कभी भी आप दिन में, रात में कभी भी लेट के देख लीजिए, जो नॉस्ट्रिल ऊपर रहेगी वो अपना वर्क फंक्शनिंग में आ जाएगी। तो सूर्य नाड़ी अगर खाना खा लेते हैं, चंद्र नाड़ी में भी खा लेते हैं, लेकिन अगर आपकी चंद्र नाड़ी चलती है तो आपको खट्टापन महसूस होगा, गैस्ट्रिक एसिडिटी होगी, पेट में अफारा भारीपन महसूस होगा। अगर यही चीज आप करवट लेकर के 5-10 मिनट के लिए लेट जाते हैं और सूर्य नाड़ी चला लेते हैं तो आपको शरीर को कुछ नहीं होगा। एक बार आपने स्टिमुलेशन दे दिया, राइट चल गई, आपका खाना पच जाएगा। आप ये छोटे छोटे फार्मूले किसी को भी बताएंगे कि किसी को एसिडिटी की शिकायत है, खाना पच नहीं रहा है, सूर्य स्वर में भोजन करे या खाना खाने के बाद बाईं करवट लेटने की आदत डाले तो आपको एसिडिटी से छुटकारा मिल सकता है। तो दोहे के रूप में कहा गया है, दाएं स्वर भोजन करे, बाएं पीवे नीर, बाएं करवट सोवे करे तो सुख पावे जीव। तो योग में, स्वरयोग में, हठ योग साधना के तौर पर कहा गया है कि हमें भोजन
सूर्य स्वर में करना चाहिए। और लिक्विड आर्टिकल जितने भी हैं, लिक्विड आर्टिकल चाय हो सकता है, दूध हो सकता है, पानी हो सकता है, आपका कोल्ड ड्रिंक हो सकता है, कोई भी ज़्यादा जो लिक्विड इनटेक है उसको हमें प्रीफर करना चाहिए। चंद्र नाड़ी लेफ्ट नॉस्ट्रिल वर्क कर रही हो तब लें। बॉडी में उसकी वॉल्यूम की जो एडजस्टमेंट है वो आसानी से हो जाती है। अगर बार बार नियम तोड़ते हो तो बॉडी में क्लेम किया गया है कि बाएं स्वर भोजन करे, दाएं पीवे नीर, 10 दिन भूलो यों करे तो पावे रोग शरीर। 10 दिन तक लगातार अगर ऐसे वायलेशन ऑफ रूल्स हो कोई करता है तो रोगी शरीर प्राप्त हो जाता है, ऐसा क्लेम है। तो कहने का मतलब यह है कि जितना हो सके नियमों का पालन करते हुए हमें स्वर साधना के तौर पर स्वरों के अनुसार अपने दिनचर्या के कर्म करें तो ज़्यादा बेटर है। जितने भी क्रिएटिव वर्क होते हैं, पूजा, उपासना, मेडिटेशन, कोई म्यूजिक सीखना है या कविता लिखनी है, सृजनात्मक जितने भी कार्य करने हैं, तो मन चंद्र नाड़ी के तौर पर चलते हुए शीतलता, सौम्यता, स्थिर होने के कारण आप क्रिएटिव वर्क आसानी से बेटर एफिशिएंसी के साथ कर सकते हो। और जितने भी फिजिकल स्ट्रेंथ से रिलेटेड कार्य हैं उनको सूर्य स्वर में करने के साथ आपको एफिशिएंसी मिल सकती है। इस पर रिसर्च भी आप कर सकते हो। स्पोर्ट्स प्लेयर पर स्पोर्ट्स एफिशिएंसी पॉइंट से भी रिसर्च की जा सकती है। तो ये मैंने आपको खाने की बात बताई। अब सोने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डे टू डे लाइफ के कुछ योग के नियम बताता हूँ। सोने के बारे में 2 मुख्य नियम हैं। एक तो बाएं करवट हमें रात को सोना चाहिए। दूसरा, हमें दक्षिण में सिर करके सोना चाहिए। आप में से किसी को ये पता है दक्षिण में सिर करके क्यों सोना चाहिए? ऊंचा बोलिए, कुछ पता नहीं चला। हाँ बोलो। सर उसका मैग्नेटिक वेव्स जो है, जो हमारी नेचुरल अर्थ की वेव्स हैं वो उल्टी साइड चलती हैं, नॉर्थ टू साउथ जैसे बोलते हैं हम चक्र। तो हमारी बॉडी में जितना भी आयरन एलिमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग चल पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी का मेटाबॉलिक रेट जो है और बाकी कंडीशंस जो है वो उल्टे चलने लग पड़ते हैं, जो कि हानिकारक होता है जितना मेरे को भी। देखिए, दक्षिण में कहा जाता है, दक्षिण में पैर करने के लिए मना किया जाता है। दक्षिण में आपने देखा होगा क्रिमेशन ग्राउंड में ही मरने के बाद ही पैर दक्षिण में किए जाते हैं। दक्षिण में सिर करके सोना ज्यादा बेटर है। इसका साइंटिफिक क्राइटेरिया ये है कि पृथ्वी की जो मैग्नेटिक फील्ड है और हमारी बॉडी का मैग्नेटिक फील्ड है वो समानांतर होना चाहिए। अगर अगेंस्ट लेटते हैं, पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड एक तरफ से, पृथ्वी बहुत बड़ी भारी है, टनों में उसका भार है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा है। अगर उसके हम एंटी लेटते हैं, पृथ्वी की इस डायरेक्शन से एनर्जी बह रही है और हमारी इधर डायरेक्शन से बह रही है, तो हमारी 50-60 किलो का जो वेट है वो क्या मायने रखता है पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड से। तो इसलिए हमारी बॉडी की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके समानांतर रखने के लिए हमारा जो सिर है साउथ में होना चाहिए। साउथ वेस्ट हो, साउथ ईस्ट हो, एग्जैक्टली साउथ ना भी हो तब भी चल जाएगा, साउथ ईस्ट भी चल जाएगा, साउथ वेस्ट भी चल जाएगा।
लेकिन नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट नहीं चल पाएगा। तो साइंटिफिक तौर पर, वैज्ञानिक आधार के तौर पर हम ये प्रीफर करना चाहिए, बॉडी डिकेइंग की तरफ जाती है, डीजनरेशन की तरफ जाती है जब आप पैरों को दक्षिण में करके सोते हैं। पैरों में दक्षिण करने की वजह से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में बाधा उत्पन्न होती है, स्ट्रेन पड़ता है, और स्ट्रेन पड़ने की वजह से वो धीरे धीरे बॉडी डिकेइंग की तरफ जाती है, डिजनरेट जाती है। कहते हैं दक्षिण में पैर करके सोने का मतलब है यमराज का घर है, इस तरह से नोशन दी जाती है। तो एक तो कारण सोने की जो सिद्धांत था साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात करनी थी, वो उसकी चर्चा करनी थी। और योग में कहा गया है बाएं करवट सोवे करे तो सुख पावे जीव। हेल्दी लॉन्गिविटी के लिए बाईं करवट सोना का विधान है। ऐसा क्यों? तो साइंटिफिकली सुनिए क्यों। कभी आपने दिल की स्ट्रक्चर देखी हो, हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं? कॉरोनरी आर्टरी के बारे में कुछ जानकारी है? देखिए, हार्ट को भी, हार्ट से एक मेन नाड़ी निकलती है, डॉर्सल ऑर्टा, उसके निकलते ही दिल को सप्लाई करने के लिए आपके कॉर्नरी आर्टरी निकलती है। उसकी दो ब्रांचें हो जाती हैं, एक राइट साइड में होती हैं और एक लेफ्ट साइड में होती हैं। जो राइट साइड में कॉर्नरी आर्टरी की ब्रांच है, उसकी एक ही ब्रांच जाती है, जबकि लेफ्ट साइड में दो ब्रांचें जाती हैं। ऐसा क्यों है? नेचर ने इसलिए दो ब्रांचें दी हैं लेफ्ट साइड में। दिल के जो लोअर पार्ट है, जिसको हम वेंट्रिकल बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल में खून साफ होकर के लंग से आता है और वेंट्रिकल के आकुंचन की क्रिया से सारे शरीर को पंप आउट करके खून को भेजा जाता है। तो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल को स्ट्रांग होना पड़ता है, जिससे कि वो ज्यादा जोर लगा करके सारे शरीर के अंगों प्रत्यंगों को साफ खून भेज सके। लेफ्ट वेंट्रिकल में देखेंगे कॉर्नरी आर्टरी की दो ब्रांच गई हैं, जिससे कि वहां की मसल्स को, कार्डियक मसल्स को खून, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया जा सके और जिससे सारे शरीर को आसानी से खून को भेजा जा सके। लेफ्ट साइड में जो राइट वेंट्रिकल है, उसने पंप आउट करके खून को ज्यादा लंग्स तक भेजना है, थोड़ी दूर तक ही साफ होने के लिए। उसको ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि नजदीकी लंग्स है, वहां साफ को खून को भेजा जाता है, गंदे खून को साफ होने के लिए। तो वहां ब्रांच एक से ही काम चल जाता है, जबकि लेफ्ट साइड में दो ब्रांचें हैं। अब आप देखिए, योग वाले कहते हैं कि बाएं करवट सोवे करे तो सुख पावे जीव। कहने का मतलब ये है, जब आप बाईं करवट लेट जाते हैं तो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे हो जाता है और खून आसानी से डॉर्सल ऑर्टा से लुढ़क करके आपके वेंट्रिकल को प्राप्त होता रहता है। और सवेरे आप उठते हैं तो अपने आप को फ्रेशनेस ज़्यादा महसूस करते हैं जब आप बाईं करवट लेटते हैं, क्योंकि खून सारे शरीर को आसानी से पंप आउट होके पहुंचा हुआ होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर को मिला होता है, तो हम नई ताजगी के साथ अपने आप को महसूस करते हैं। अगर यही चीज उलट हो जाए, आप दाईं करवट ज्यादा सोते हैं, तो आपको लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ पहाड़ की तरह खून को, उसको ऊंचाई की तरफ ले जाना पड़ेगा। अगर लेफ्ट साइड ऊंची हो जाती है तो वो आसानी से ना प्राप्त होने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल, तो सारे शरीर को उतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती जितना कि मिल पानी चाहिए। तो ये साइंटिफिक रीजनिंग हो सकता है, बाईं करवट सोने से शरीर हमारा ज़्यादा क्रियाशील हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, नई ताजगी से हरा भरा हो जाता है। तो हमें बाईं करवट सोना चाहिए, इसलिए लॉन्गेविटी के लिए उन्होंने
सोने के निर्देश की चर्चा की है। एक और कुछ बातें आपके साथ करनी थी। सर एक प्रश्न पूछ लूं? बोलिए। जैसे आपने कहा कि स्वर योग में कि लेफ्ट नोस्ट्रल और राइट नोस्ट्रल, उसके अनुसार हमें किस तरफ करवट लेके लेटना चाहिए? दोबारा बोलिए। स्वर योग की बात की ना आपने, लेफ्ट नोस्ट्रल और राइट नोस्ट्रल, उसके हिसाब से हमें रात को किस साइड करवट लेके लेटना चाहिए? बाईं करवट, बाईं तरफ, लेफ्ट साइड, राइट को ऊपर करके, सूर्य नाड़ी चला करके। तो सूर्य नाड़ी से तो मतलब नींद में बेचैनी नहीं होगी? है? सूर्य नाड़ी चलने से बेचैनी नहीं होगी? बेचैनी नहीं होगी। देखिए, सूर्य नाड़ी चलते हुए ये है कि बॉडी में एनर्जाइज प्रोडक्शन होता रहेगा। शरीर को फिजिकल एक्टिविटी लो होते हुए भी, सोते हुए भी, शरीर को बनाए रखने के लिए भी, हर एक अंग को, श्वसन क्रिया को चलाए रखने के लिए, और भी अंदर की जो बेसिक जो आपको BMR है, बेजल मेटाबॉलिक जो इंडेक्स है, उसको बनाए रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कंटिन्यूस प्राप्त होती रहती है। जो कि लेफ्ट, अगर आप उल्टा लेट जाओ, राइट साइड लेट जाओ, उतनी वो एनर्जी प्राप्त नहीं हो सकती। इससे रिलेटेड एक ना, जैसे लेफ्ट नोस्ट्रल हम कहते हैं कि माइंड को रिप्रेजेंट करती है, मन को, बाईं नासिका। तो अगर हम राइट साइड करवट लेके लेटे और लेफ्ट नोस्ट्रल एक्टिवेट हो तो मन शांत होता है, और मन शांत हो तो नींद अच्छी आती है। फिर ये बात थोड़ी सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड लगी तो मैंने पूछा। क्योंकि कई जगह लिखा होता है कि लेफ्ट साइड चले, अगर नोस्ट्रल चले तो मन शांत होता है और नींद अच्छी आती है, तो लेफ्ट को ऊपर लेके लेटे। तो ये बात थोड़ी सी मेरे को उसके ऑपोजिट लगी, इसलिए मैंने क्लैरिटी के लिए क्वेश्चन आपका इस बात का मैं जवाब देना ये चाहता हूं कि जब आप राइट साइड, राइट नहीं चलाते, लेफ्ट चलाते हो, मन एक्टिव हो जाता है और स्वप्न युक्त निद्रा आती है। मेंटल फैकल्टी वर्क करती है और स्वप्न युक्त निद्रा आने की वजह से उतनी आपको शांति पूर्वक निद्रा नहीं मिलेगी। मेंटल फैकल्टी को जीरो करने के लिए, स्वप्न रहित निद्रा लेने के लिए आपको राइट चलाना जरूरी है। मेंटल फैकल्टी वर्क तभी करती है जब चंद्र नाड़ी चलती है। लेकिन मैम फिर लेफ्ट तो, हार्ट तो फिर लेफ्ट साइड है, अगर हम लेफ्ट साइड लेटेंगे तो राइट हेमिस्फीयर एक्टिवेट हो गया। फिर तो शवासन में भी लेट सकते हैं। अभी सर ने कहा ना लेफ्ट साइड लेटो, तो लेफ्ट हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकुलर ऑरिकल जो अच्छा, बाकी देखो, लेटेस्ट रिसर्च स्टडीज ये हो गई हैं कि जब हमारी राइट नॉस्ट्रिल वर्क करती है तो लेफ्ट हेमिस्फीयर काम करता है, जो लेफ्ट चलती है तो राइट हेमिस्फीयर काम करता है। दो हेमिस्फीयर को बैलेंसिंग करना होता है। कुछ सेंटर्स हमारे एक तरफ हैं, कुछ सेंटर्स एक तरफ हैं। तो हंगर सेंटर हमारा तभी काम करता है जब हमारी राइट चल रही होती है। अगर ध्यान से देखोगे तो मैं अब इम्पोर्टेंट आपसे बात कर लूं, थोड़ा सा उसके बाद चर्चा करते हैं। देखिए, एक तो जो मालिश की जाती है, अभ्यंग जिसको हम कहते हैं, हर एक अंग की मालिश मर्दन जो क्रिया करके हम अभ्यंग करते हैं, अगर अभ्यंग की क्रिया को अगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलते हुए, चंद्र नाड़ी चलते हुए किया जाएगा तो बॉडी में वो तेल, अभ्यंग की क्रिया आपकी एक्टिव होगी और वो एब्जॉर्ब होगा, और जो
आपको अभ्यंग का सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा अगर आप अभ्यंग की जो क्रिया है चंद्र नाड़ी में चलते हुए करते हैं। षटकर्म जितने भी हैं ये स्टर्नुअस एक्टिविटी है जिसमें एनर्जेटिक होना पड़ता है। उल्टी करनी हो आपको, षटकर्म सुतनेति जलनेति करनी हो, बस्ती क्रिया करनी हो, न्यौली करनी हो, तो ये स्टर्नुअस एक्टिविटी के तौर पर षटकर्मों का अभ्यास हमेशा सूर्य नाड़ी चलते हुए शुरू में, सूर्य नाड़ी के शुरू होते हुए करना चाहिए तो बेटर है। इसी प्रकार अब आपको कुछ खाने की बातें इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। एक खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मिताहारी होना चाहिए, मॉडरेशन इन डाइट होनी चाहिए। कोमल भोजन कीजिए, आधी रखिए भूख, पवन बसे सिक्सों जहां तन नहीं पावे दुख। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ना तो योग ज्यादा खाने वाले को सिद्ध होता है ना कम खाने वाले को सिद्ध होता है। युक्ति पूर्वक खाने पीने से और युक्ति पूर्वक सोने से हमारे योग में सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसा गीता का कथन है। तो मिताहार, मॉडरेशन इन डाइट का मतलब ये है कि आधा पेट जो है हमें सॉलिड फूड से भरना चाहिए, 1/4 लिक्विड से, 1/4 जो उसकी वजह से फूड मेटाबॉलिज्म की वजह से जो गैस बनती हैं उनकी एकोमोडेशन के लिए पवन बसे सुखसों जहां, जो गैसेस वगैरह प्रोडक्शन होगा उनकी एडजस्टमेंट के लिए भी जगह खाली छोड़ी होनी चाहिए, जिससे कि आपको गैस्ट्रिक एसिडिटी, अफारे की शिकायत ना हो। तो सिद्धांत है मॉडरेशन इन डाइट का, मिताहार का, तो उसको योग में प्रीफर करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। दूसरा, रीहीटेड फूड नहीं दोबारा गर्म किया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, वो उसमें अल्कोहलिक टिंज आ जाता है। लेकिन हमारे आजकल कल्चर कुछ ऐसी हो रही है, फ्रिज का गर्म किया हुआ खाना हम खाने की कोशिश करते हैं। जो फ्रेशनेस ऑफ मील फ्रेशनेस में है वो रखे हुए खाने को गर्म करके खाने में, चाहे आप माइक्रोवेव में गर्म करके खाएं, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू उतनी नहीं होती जो कि फ्रेशनेस की होती है। तो रीहीटेड फूड हमारे योग में हठ प्रदीपिका में क्लियर कट कहा हुआ है, रीहीटेड फूड से बचें, बासी भोजन से बचें, शुष्क भोजन से बचें, दुर्गंध युक्त भोजन से बचें। खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। डे टू डे लाइफ में नियम है कि खाने के बाद पानी पीने की आदत न, मुंह आप खाना खाने के बाद कुरला कर सकते हैं, मुंह साफ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हुई 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं, लेकिन 2-4 गिलास के तौर पर समापन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भोजन को ज़्यादा पानी पीना मना किया गया है। खाने के आधे घंटे बाद भोजन करें, भोजन के आधे घंटे बाद पानी पिएं तो ज़्यादा बेटर है। नुकसान नंबर 1, अगर भोजन के बाद इमीडिएटली पानी पीते हैं, वो भी कोल्ड वाटर पीते हैं, फ्रेश कोल्ड वाटर पीते हैं, बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है। पानी आप पी लेते हो 25-20 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो जब तक बॉडी की हीट उसको गर्म करके 37 पर ले आती है, आपकी डाइजेशन की क्रिया, एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो सकती। इसलिए अगर टेम्परेचर डाउन कर देते हो ऊपर से, खास तौर पर आइसक्रीम खा करके, तो इंडाइजेशन क्रिएट होगा। तो खाने के बाद भोजन में पानी पीने से जो आपके एंजाइम निकलते हैं खाना पचाने के लिए पेट में, वो डिल्यूट हो जाते हैं, आपकी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है। नुकसान नंबर 2, और कई बार हम भोजन ऊपर तक भर लेते हैं, मैकेनिकल प्रेशर पड़ता है, आपका वाल्व खुल जाता है, बिना खाना पचे स्टोमक के आगे खिसक जाता है डूडेनम में, तो वो भी अपच पैदा करता है। तो खाने के जब पेट की डाइजेशन 30 मिनट में पूरी हो जाए, उसके बाद उसको आगे खिसकाने के लिए, लिक्विड बनाने के लिए खाने के आधे घंटे बाद नेचुरल तौर पर प्यास लगती है। खाने के आधे पौने घंटे बाद पानी पीना श्रेष्ठकर है अपनी डाइजेस्टिव एक्टिविटी को बनाए रखने के लिए। नहाने की प्रक्रिया के तौर पर यह है, अगर आप सूर्य स्वर में ठंडे जल से, ताजे जल से नहाने की प्रक्रिया अपनाएंगे तो बॉडी सूर्य स्वर चलते हुए
ठंडे जल को आसानी से टॉलरेट कर सकती है। आपने देखा होगा सर्दियों में आपकी राइट नॉस्ट्रिल ज़्यादा चलती है, ठंडे एनवायरनमेंट की वजह से राइट चलेगी तो आपको ठंड आसानी से टॉलरेट कर सकते हैं। अगर लेफ़्ट चल रही होगी तो आप एहसास करेंगे कि मेरी ठंड ज़्यादा पड़ रही है। तो अगर आपको ठंड लगती हो ज़्यादा तो सूर्य नाड़ी चलाने की कोशिश करें। हाथ पैर ठंडे हो रहे हों, हाथ पैरों की तरफ ब्लड सर्कुलेशन की जो सप्लाई है वो सूर्य नाड़ी चलते हुए होती है। कर्मेंद्रियां जो हैं उनकी तरफ पैरों में हाथों में सप्लाई, जो कर्मेंद्रियां हैं उनकी तरफ सप्लाई का काम ब्लड का सूर्य स्वर चलते हुए होता है, और जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनकी तरफ ब्लड सप्लाई का काम चंद्र स्वर में होता है। तो उस चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ध्यान रखें तो ज़्यादा बेटर है। अगर सर्दी जुकाम अगर आपको हो जाता है तो सर्दी जुकाम के तौर पर, सर्दी जुकाम ठंड की वजह से अगर सर्दी जुकाम हुआ है उसको डे टू डे लाइफ में कैसे काउंटरेक्ट किया जा सकता है उसकी मैं थोड़ा सा आपको नुक्ता बता देता हूँ। देखिए, आपने त्रिफला का नाम सुना होगा। त्रिफला के साथ साथ एक त्रिकुटा भी होता है। त्रिकुट में 3 चीज होती हैं, सौंठ, ड्राई जिंजर, काली मिर्च पाउडर भी घरों में होता है। एक पिपली नाम का, पिपला मूल, पिपली या पंजाबी में कहते हैं मगा, ये करियाने की दुकान से मिल जाती है मगा, या बना बनाया आयुर्वेदिक मेडिसिन के तौर पर त्रिकुटा नाम से मेडिसिन मिल जाती है, जिसमें इक्वल प्रोपोर्शन में काली मिर्च, ड्राई जिंजर और पिपली का पाउडर अगर हो तो उसका 1 चम्मच रात को दूध के साथ लेकर के आप सो जाएं। ये तीनों चीज, ड्राई जिंजर भी त्रिदोष नाशक है, पिपली भी, मगा भी त्रिदोष नाशक है, और काली मिर्च भी त्रिदोष नाशक है। तो तीनों जो हैं एक तो गर्म है, त्रिदोष नाशक हैं। जब इनको दूध के साथ आप रात को लोगे, ऊपर से आप रात भर बाईं करवट अगर सो जाते हैं, सूर्य नाड़ी चलते हुए शरीर में गर्मी पैदा होगी, ऊपर से त्रिकुट की गर्मी भी आपको हेल्प करेगी। तो ये दोनों उपाय जो आप बाईं करवट लेटोगे और त्रिकुट पाउडर लिया होगा तो ठंड से लगे जुकाम आपके काबू में आ जाएगा और आप उससे निजात पा लेंगे। 1 दिन में नहीं होगा तो 2 दिन में पूरा हो जाएगा। तो बताने को तो और भी कुछ हैं। एक जो टेंडेंसी देखी है, हम कम्बो पैक के तौर पर स्नैक लेते हैं, जैसे बर्गर के साथ हम कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, ये टेंडेंसीज गलत हैं। कोल्ड ड्रिंक के साथ कोई सॉलिड फूड आप अगर लेंगे, और कोल्ड ड्रिंक जो है एक ठंडा है, और भी दूसरा नुकसान भी है, जरूरत से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक जो लेते हैं उनसे बीपी की टेंडेंसी क्रिएट हो सकती है। वो साइंटिफिक तौर पर उसकी मैं चर्चा कर सकता हूं। जैसे एक बच्चे को अगर दस्त लग जाए या उल्टी दस्त की वजह से हम कह देते हैं बच्चे को, ट्रीटमेंट के तौर पर हम ORS का घोल देते हैं। ORS के घोल में क्या होता है, सलाइन, नमक और मीठा। घर में और कुछ ना हो, ORS का घोल भी ना हो, तो हम कहते हैं 1 चम्मच चीनी घोल करके डाल दीजिए, 1 चम्मच नमक थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, दोनों का मिक्सचर डाल दीजिए। तो किसी तरह से भी शरीर में उल्टी दस्त की वजह से बीपी जो लो हो जाता है उसको मेंटेन करने के लिए
हम ORS का घोल देते हैं, नमक और मीठे का घोल दिया जाता है। तो आपका जो कोल्ड ड्रिंक है उसमें क्या है, हल्का सा नमक भी है, मीठा भी है। तो ये स्लो डाउन तौर पर लॉन्ग टर्म में जब नमक और मीठा लगातार इकट्ठा लिया जाता है तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ने की टेंडेंसी बढ़ाता है। तो लॉन्ग टर्म में इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो मैं अपनी चर्चा को यहीं रोकता हूं, इस बात के साथ कि हमें डिसिप्लिन्ड वे में योग के जो बातें हैं उनको साइंटिफिक तौर पर एक्सप्लेनेशन के साथ उनको ऑब्जर्व करते हुए हमें खुद भी अपनाने चाहिए और दूसरों को भी अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब आप जैसे कि योग में आए हैं तो विस्तृत जानकारी आपको कोर्स के तौर पर मिलेगी। तो इसी शब्दों के साथ मैं यहाँ चर्चा अपनी बंद करता हूँ। अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। जैसे कि आपने योगा में हेलो सर, मैं डॉक्टर भट्टी हूँ, मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है बेसिकली। तो जैसे कि आपने कहा कि जैसे योगा में 3-4 हज़ार साल पहले से ये चलता रहा कि ईड़ा और पिंगला और ये नाड़ी जो चलती है उसके बारे में, जैसे कि ये सूर्य है, ये चंद्र है। लेकिन इसके बाद अभी लाइक 1895 में एक जर्मन साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि दिस इज़ द बेसिकली अल्टरनेटिव फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है। हाइपोथैलेमस से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को डायरेक्शन मिलती है। तो 3-4 या 2.5 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली ये खुल जाती है, बंद हो जाती है फिजियोलॉजिकली। तो हम भी नहीं चाहिए कि हम साइंटिफिकली अगर इसे बताना चाहें तो हम डिफरेंट तरीके से बताएं कि हमारे पास ऐसा कोई वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। ये अभी तो प्रूव हो गया, लेकिन जो पिछला हम योगा से चला आ रहा है उसको हम कैसे रेट करेंगे इसको साइंटिफिकली, योगिकली। ये मेरा प्रश्न है। देखिए, यूनिनॉस्ट्रल ब्रीदिंग के बारे में कई रिसर्चेज हुई हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे करवट लेके लेटने से भी नॉस्ट्रल ब्रीदिंग बदल जाती है। पुराने जमाने में योगियों के पास टी शेप्ड डंडा होता था और योग साधना के तौर पर इसको रेगुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस आर्म पिट में उस टी शेप डंडे को लगा के बैठ जाएं तो ये नॉस्ट्रिल चलती है अपोजिट, और इसको लगा के बैठ जाएं तो ये नॉस्ट्रिल आपस में चलती है। यहाँ के प्रेशर से, आर्म पिट के प्रेशर से भी ये प्रभावित होती है। बाजू को अगर बांध दिया जाए अपर आर्म को यहाँ से, उससे भी ये नॉस्ट्रल ब्रीदिंग प्रभावित होती है। तो इन चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडीज, तो कुछ रिसर्च स्टडीज आई तो हैं और इन चीजों की साइंटिफिक स्टडीज भी हो रही हैं कि कुछ नॉस्ट्रल ब्रीदिंग की वजह से हम ट्रीटमेंट भी कर पाते हैं। जैसे माइग्रेन का है, हमारी स्वर साधना के तौर पर कहा गया है कि जो नॉस्ट्रल चल रही है वो आपकी बीमारी के लिए जिम्मेवार है। अगर उसको आर्टिफिशियल तौर पर बंद करके दूसरी को चला दिया जाए तो आपके डिजीज के साइन सिम्टम्स सबसाइड हो सकते हैं, चाहे वो माइग्रेन है, चाहे एसिडिटी है, चाहे अस्थमा का दौरा है, चाहे एपिलेप्सी अटैक है। तो
बॉडी में जो फिजियोलॉजी चल रही होती है एक नॉस्ट्रल चलते हुए, उसको हम रोक करके संभव हो पाता है कि हम रोक करके एक माहौल को रोक करके सबसाइड कर सकते हैं, साइन सिम्टम्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। योग में पूरी साधना पद्धति है स्पिरिचुअल साधना के तौर पर। इसी को, इन्हीं नॉस्ट्रिल को कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा हठ योग इसी बात पर लगा हुआ है कि किसी प्रकार हमारी प्राण शक्ति जो ईड़ा पिंगड़ा में दो एनर्जी चैनल्स में चल रही है, लेफ्ट राइट में, उसको इक्वली हमने चलाना है। चाहे हम षटकर्म की सहायता से यूज़ करें, चाहे प्राणायाम की सहायता से इस्तेमाल करें, चाहे मुद्रा बंद की सहायता से इस्तेमाल करें। ये जितनी भी योगी प्रैक्टिसेस होती हैं सारी चैनलाइज करने के लिए हैं प्राण शक्ति को, तो उस आधार पर ये वर्क करती हैं। थैंक यू सर। एक लास्ट क्वेश्चन, एक ही इसी से रिलेटेड है, छोटा सा इसी से रिलेटेड है, ईड़ा पिंगला से, कि जैसे तो आपने बताया बड़ा अच्छा कि लेफ्ट साइड लेट के राइट साइड, और सर ने पूछा साइंटिफिक वे से, क्या हम बैठे बैठे ही मेंटली कहें कि मेरी राइट नोस्ट्रल चल जाए, मेंटली मनन करें तो राइट चलने लगे, और फिर चिंतन मनन करें कि लेफ्ट चल जाए तो लेफ्ट चलने लगे, ऐसा पॉसिबल है? अगर मैं आपको कहूँ रसगुल्ले का ख्याल कीजिए, मुंह में पानी आ जाता है ना, नींबू का कहने से उसी प्रकार नाड़ियों के जो गुण धर्म हैं उन पर ध्यान लगाने से, अगर आप सूर्य नाड़ी के कैरेक्टरिस्टिक्स पर ध्यान लगाएंगे ना तो आपकी राइट चल जाएगी। ठीक। चंद्र नाड़ी पर गुण धर्म पर ध्यान लगाएंगे तो मेडिटेट करेंगे तो चंद्र नाड़ी चल जाएगी। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सर। Thank you, Dr. Giri, for such a comprehensive explanation. I'm sure the knowledge shared by you will be of immense benefit to our students as well as faculty. May I now invite Dr. Mohinder Kumar. Before that, we would like to present a small memento to our worthy chief guest. I request respected Principal Ma'am to present a small memento to Dr. Giri as a token of our love, respect, and remembrance. Thank you so much, sir. May I now invite Dr. Mohinder Kumar for the formal vote of thanks, please. थैंक यू सर की कोली मैम। राजकीय योग शिक्षण व स्वास्थ्य महाविद्यालय की तरफ से प्रिंसिपल महोदया की तरफ से मुझे ये ड्यूटी दी गई है कि मैं आप सब की तरफ से जो आप सब की भावनाएं हैं, सात्विक विचार हैं, उनका पुष्पगुच्छ बना करके मैं अतिथि के मन मस्तिष्क में, हृदय में समर्पित कर पाऊँ, तो मैं हमारे मध्य में विराजमान डॉक्टर राकेश गिरी जी का आप सभी की तरफ से धन्यवाद कहता हूँ। इतना सुंदर स्तर इन्होंने कहा और अपने वाणी से, ज्ञान से और साइंटिफिक बैकग्राउंड से जो हमें हठ योग की विधियाँ हैं, जो लाभ है, वो हमें बताए हैं। तो हम आपको पहले ही बताया कि गिरी साहब के लिए ये इंस्टीट्यूट नया नहीं है, लेकिन हम नए हैं सर। सब स्टूडेंट्स नए आते हैं, आप स्वयं जानते ही हैं। तो जिस प्रकार से हम पुस्तकों में पढ़ते हैं कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग इत्यादि, और फिर हम आज की परंपरा में कि अयंगर योग भी है ना, होठ योगा भी है, हमारे कॉलेज की बात करें तो रोशन योगा भी आप कह सकते हैं। इस प्रकार से तो गिरी योगा भी ये परंपरा से हैं। इनके जो पिताश्री थे वो भी योग से थे, और जो गिरी साहब हैं और सारे भाई हैं, 5 भाई हैं, सब के सब योग में हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में योग के विभागों को देख रहे हैं। तो योग के जिस प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को इन्होंने बताया, हठ योग का, गैरन संहिता का, चरणदास कृत अष्टांग योग को दोहे के माध्यम से संक्षिप्त में समझाया है, ये हमारे प्रत्येक के लिए संभव नहीं है। इस प्रकार से समझाना, इस प्रकार से समझना और इस प्रकार से बता पाना, जो एग्जाम्पल्स इन्होंने दी हैं वो बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छी लगी। धन्यवाद सर। और
मैं अग्रिम क्षमा चाहूँगा क्योंकि मैं इतना लायक नहीं था कि मैं मेरी पीएचडी 2.5-3 वर्ष में कर पाऊँ। तो मुझे सर के साथ रहने का 6 वर्ष का अनुभव भी रहा है। तो मैंने सर का लाइफस्टाइल देखा है। आपने न्यूटन का सुना होगा कि वो अपने काम में इतने मगन रहते थे कि वो भूल जाते थे भी खाना कब खाना है। तो इसी प्रकार से मैंने देखा है कि सर है ना, आगे पानी भी पी लिया और काम भी करवाने लग गए, बताने भी लग गए, हेलमेट उतारना ही भूल गए। इतना मतलब ये अपने फील्ड के लिए समर्पित हैं, तो मैंने क्षमा चाहूँगा। और दूसरा ये है कि जिस प्रकार से सबके लिए, आप सबके लिए, हम भारतीयों के लिए हम 33 करोड़ देवी देवता कहते हैं, लेकिन मैं आपके सबके साथ ही हूँ, लेकिन मेरे लिए 33 करोड़ और एक ये भी मेरे लिए देवता समान है। जो इन्होंने बताया है, अगर आपने ग्रहण नहीं किया है तो यूट्यूब पर रोशन सर डालेंगे, वो पुनः सुन लेना, क्योंकि कल की भांति मैं फिर आपको बता दूं कि आपको अनुसरण करने के लिए भी आप प्रतिबद्ध नहीं हैं, बाध्य भी हैं, क्योंकि एग्जामिनर ये भी आते हैं कई बार पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से है ना। तो गुरु के गुणों को अगर हम, जैसे कबीर जी कहते हैं ना कि सारे जंगल का अगर मैं कलम बनाऊं और सारे समुद्र को शाही बनाऊं तो भी न लिखे जाएं, तो इसी प्रकार से आप एक योग के चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया हैं। और जिस प्रकार से दशरथ के पुत्र कहते हैं कि जल्दी शीघ्र प्राप्ति नहीं हुई थी, संतान उत्पन्न नहीं हुई थी, अनेकों अनेक यज्ञ मंत्रोच्चारण करवाए गए, लेकिन फिर भी संभव नहीं हो पाने पर श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। तो योग की ये श्रृंगी ऋषि हैं। तो आपको अवश्य ही ज्ञान रूपी पुत्र की प्राप्ति सभी को होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आपने चौथे दिन को विशेष बनाया, सफल बनाने के लिए मैं पुनः बच्चों की तरफ से, सब कर्मचारियों की तरफ से इनको साधुवाद कहता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ। और ये मैं भूलूंगा नहीं कि ये सब जो कार्यक्रम, तरह तरह के भांति भांति के प्रोग्राम हैं, ये हमारी प्रिंसिपल महोदया जी के मन मस्तिष्क की उपज है कि हम सब तो छुट्टियां एंजॉय कर रहे थे, जिस प्रकार से सारे कॉलेजेस में एम्प्लॉय छुट्टियां कर रहे थे, और इनके दिमाग में ये था कि ये कार्यशाला का आयोजन करवाना है, तो मैं इनका भी आप सभी की तरफ से धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Dr. Mahinder. And once again, thank you everyone for being with us.